Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will do comprehension. Comprehension means to understand a piece of writing, story, etc. and be able to answer the questions after reading it. Comprehension क्या है? राइटिंग या स्टोरी का वो पीस होते हैं जिनको हमें समझना होता है और समझ करके हमको उनकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर करने होते हैं. Now read the following stories, passages, poem carefully, then answer the questions given below them. Number 1. The Clever Lion. Once 4 bulls lived in a field. There was enough grass for them and they were all happy. The other animals didn't fight with them. Even the lion dared not to fight with them. If he fought with one bull, the other 3 would also join in. They were very united. एक बार एक फील्ड में जो है 4 बुल्स रहते थे. उनके पास इनफ ग्रास था उनके लिए और वो उससे बड़े खुश थे. कोई भी दूसरा एनिमल उनसे झगड़ा करने नहीं आता था. यहाँ तक कि लायन भी उनसे झगड़ा नहीं कर पाता था क्योंकि उनमें बहुत यूनिटी थी. अगर कभी वो किसी एक से झगड़ा करने जाता था तो बाकी के 3 बुल्स आकर के जो है उस पे एक साथ उसके हो जाते थे. One day the lion made a plan. He went to each one separately and told them that the other 3 bulls ate more grass than he. He said, "You hardly eat your share. They gobble up so much of the grass. This is not right on the part of your friends." The bulls began suspecting each other. They were no longer friends. Each went away by himself. अब एक दिन लायन ने क्या करा, उसने प्लानिंग करी. वो बुल के पास गया और उसने अलग अलग उनसे बात करी और उनसे क्या बोला कि जो तुम्हारे और एनिमल्स हैं, जो और बुल्स हैं, वो तुमसे ज़्यादा ग्रास को खाते हैं. अब बुल्स के बीच में डाउट क्रिएट हो गया. वो एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे. अब वो जो है स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड फ्रेंड्स नहीं थे, सब अलग अलग चले गए थे. This was what the lion wanted. One day, the lion sprang upon one of the bulls and ate him up. The other bulls didn't help him. Next week, he sprang upon another, and thus slowly every week he killed one bull because the bulls didn't help each other. Finally, the lion had killed and eaten up all of them. अब जब उसने उनके बीच में शक क्रिएट कर दिया था तो अब वो फ्रेंड्स भी नहीं थे. तो लायन ने 1 बाय 1 सबको मार के खाना शुरू कर दिया और फाइनली सारे की सारी जो बुल्स थे वो सब खत्म हो गए. When they were united, the bulls were strong and safe. When they began suspecting each other and not helping each other, they became weak and could not fight the lion. जब तक वो यूनाइटेड थे, स्ट्रॉन्ग थे और सेफ भी थे, लेकिन जब उन्होंने शक करना शुरू किया, अलग अलग हो गए, तो उसके बाद ना तो वो स्ट्रॉन्ग रहे, वो वीक बन गए थे उसके बाद, और जो लायन से वो उसके बाद फाइटिंग नहीं कर पाए और ऐसे ख़त्म हो गए. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. दिस इज़ योर एक्सरसाइज. नाउ यू कैन डू इट. नेक्स्ट, द माइस एंड द एलिफेंट्स. It was a very hot summer. All the rivers had run dry. A thirsty herd of wild elephants wandered in search of water, but they were in no luck for many days. One day, deep in the forest, the elephants saw a lake. They ran towards it. The sound of their running would have put the roaring thunder to shame. अब जब बहुत गर्मी का टाइम था, सारी जो नदियाँ थी वो सूख गई थी, तो एलिफेंट्स का जो झुंड था वो पानी की खोज में निकल गया, लेकिन उन्हें पानी कहीं भी नहीं मिला. एक दिन उनको फॉरेस्ट में एक लेक दिखाई दी. अब वो उसकी तरफ उन्होंने दौड़ना शुरू किया. लेक की तरफ सारे भागे. उनके दौड़ने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि जो उनकी रोरिंग साउंड थी वो दब गई थी. A large family of mice lived near the lake. Many of the mice were hurt when the elephants ran to the lake. The mice had a meeting.
Let us go to the leader of the elephants. We should ask him to use another way to the lake, said an old mouse. अब जहाँ वो गए थे वहाँ पर क्या था, माइस भी रहते थे और बहुत से माइस जो है उनकी वजह से हर्ट हो गए थे. अब सब ने माइस ने जो है मीटिंग करी. मीटिंग के बाद उन्होंने क्या डिसाइड करा कि इसके बारे में जो है वो एलिफेंट के जो लीडर है उससे बात करेंगे. सो दे वेंट टू द लीडर ऑफ द हर्ड एंड सेड, ओ किंग, वी हैव लिव्ड नियर द लेक फॉर मैनी ईयर्स. When you came to drink water, many of us were hurt. Could you please use another route to get to the lake? We may be able to help you. The leader of the elephants was very kind. He said to them, please don't worry. I shall tell my herd to use another route. The mice were very happy and went home. The elephant, however, thought to himself, how can these tiny weeny mice help us? अब जब लीडर के पास वो बात करने के लिए गए तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी माइस ने कि आप जो है दूसरा रूट ले लीजिए ताकि हम लोग सेफ रहे और हम कभी ना कभी आपकी हेल्प करेंगे. एलिफेंट्स का जो लीडर था वो बहुत काइंड हार्टेड था. वो उनके साथ मान गया, उनकी बात को मान गया, लेकिन साथ में उसने ये भी सोचा कि छोटे छोटे माइस कैसे हेल्प कर सकते हैं. अ फोर्टनाइट लेटर द एलिफेंट्स वेंट टू द लेक टू बेथ एंड ड्रिंक वाटर. They were not aware that some cruel hunters had laid out trap for them. The leader got caught in one of them. He was in agony. In fear, he trumpeted loud and long. अब एक दिन क्या हुआ, एक एलिफेंट उसमें फंस गया. उसको नहीं पता था कि वहाँ पर हंटर ने उसके लिए जाल फैलाया हुआ है. अब वो परेशानी में आ गया तो बड़ी तेजी से जो है वो अपनी आवाज़ से निकालने लगा. The hunters who were hiding behind the trees came rushing towards the leader. They pulled the poor elephant away and tied him to a heavy stone post. They planned to keep him captive and use him to pull logs through thick forest and over long distances. जब हंटर्स ने उसको पकड़ लिया तो उन्होंने उसको एक स्टोन पोस्ट से बांध दिया और क्या सोचा कि अब वो इससे जो है अपनी हेल्प करवाएंगे, इससे काम लेंगे. किस चीज़ में, जो बड़े बड़े लॉक्स होते हैं उनको फॉरेस्ट से लेके जाने में. द फैमिली ऑफ माइस हैड सीन व्हाट हैड हैपेंड. दे रिमेंबर्ड देयर प्रॉमिस एंड वेटेड फॉर देयर चांस टू हेल्प द एलिफेंट. दे केम क्लोज टू हिम एंड बिट थ्रू द रोप्स दैट वर यूज्ड टू टाई हिम टू द पोस्ट. Soon the elephant was free. He thanked his friends and went back to his hut. That day, the elephant learned that even the small can indeed sometimes help the big. अब जब उसको हंटर ने वहाँ बांध दिया था तो उसकी आवाज़ सुनकर क्या हुआ, माइस बाहर निकले और उन्होंने जिस रोप ने उसको बांधा हुआ था एलिफेंट को, उस रोप को काट दिया और इस तरह से जो है एलिफेंट फ्री हो गया. और फिर उसने जो है उनको थैंक्स भी कहा और उसको समझ में भी आ गया कि छोटी से छोटी चीज़ भी कभी ना कभी हमारी बड़ी से बड़ी हेल्प कर सकती है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. दिस इज योर एक्सरसाइज. यू हैव टू प्रैक्टिस इट. द रॉबिन. Robin sang so sweetly when the days were bright. Thanks to God for summer days. He sang with all his might. रॉबिन क्या कर रही थी, बहुत अच्छे ढंग से बहुत मीठा गाना गा रही थी और भगवान को धन्यवाद दे रही थी. किस चीज़ के लिए, समर डेज के लिए. रॉबिन sang so sweetly in the autumn days. There is fruit for everyone. Let us all give praise. ऑटम डेज में भी रॉबिन जो है बहुत मधुर गाना गा रही थी. क्यों गा रही थी, क्योंकि उस समय पेड़ों में उनको क्या मिले थे, फ्रूट्स मिल रहे और वो सब उनकी एप्रिशिएशन कर रहे थे, सब उनको प्रेज कर रहे थे. इन द विंटरी वेदर स्टिल वी हेयर हिज सॉन्ग. सम लिटिल बर्ड मस्ट सिंग सेड ही, और विंटर विल सीम टू लॉन्ग. उन्होंने क्या कहा कि विंटर सीजन में भी जो है कुछ बर्ड्स को हम बर्ड्स को जो है मधुर गाना गाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो विंटर्स हैं वो बहुत लंबे लंबे हमें लगेंगे और इसलिए हमें विंटरी वेदर में भी हम उसके गाने को सुन सकते हैं. When the spring came back again, he sang, I told you so.
keep on singing through the winter, it will always go. जब स्प्रिंग दोबारा आया तो उसने क्या कहा, क्या गाना गाया कि keep on singing through the winter, it will always go. I hope it is clear to you now. This is your exercise. You have to practice it. Now, the old lady. In a little village by the sea lived an old lady who owned many paddy fields. One day, while the villagers were having a feast by the sea, she was sitting outside her house with her granddaughter. She felt some tremors and the houses shook, but they were still again. एक बार एक गांव में एक ओल्ड लेडी जिसके पैडी फील्ड्स थे वो बाहर बैठी हुई थी, अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, और उसने अचानक से क्या सुना, क्या उसको महसूस हुआ कि उसके घर में जैसे कुछ झटके से आ रहे हैं, उसके घर को कोई हिला रहा है, लेकिन थोड़ी देर में फिर सब ठीक हो गया था. Then she saw the sea rushing back from the land. She realized that there was danger ahead. The villagers ran to the sea to witness the strange sight. Without losing any time, she took a lighted torch and set her paddy fields ablaze. The bell in the temple rang to catch the villagers' attention. The villagers ran as fast as they could up the hill to the burning paddy fields. The old lady was glad that she got everybody up the hill. Then somebody shouted, "Look at the sea." They looked and saw the sea rolling back to the land in a great wave, destroying all the homes. The villagers were filled with gratitude. लेडी ने क्या करा, जब उसको दोबारा से दिखाई दिया कि सी जो है वापस लैंड की तरफ को जो है बहुत तेज़ी से जो समुद्र था उसका बहाव बहुत तेज़ी से आ रहा था, तो उसको समझ में आ गया कुछ खतरा है. उसने क्या करा, अपने जो पैडी फील्ड्स थे उनमें आग लगा दी, और उसके बाद क्या करा, जो टेम्पल की जो बेल थी वो बजने लगी. उसको क्यों बजाया गया, क्योंकि ताकि उससे जो विलेजर्स थे उनका अटेंशन उसकी तरफ जाए. अब विलेजर्स जो है तेज़ी से अपने अपने घर छोड़ के हिल की तरफ भागने शुरू हुए, और वहाँ जा कर के जब वो पहुँच गए वहाँ, तो उन्होंने क्या देखा था कि जो सी जो बड़े फोर्स से आगे आ रहा था उसने सब कुछ वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, सारे घर डिस्ट्रॉय कर दिए थे, लैंड डिस्ट्रॉय कर दिए थे, और इस तरह से उस ओल्ड लेडी ने सारे विलेजर्स की जान को बचाया. ये देख करके जो जितने भी विलेजर्स थे वो ग्रेटिट्यूड की भावना से भर गए. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. दिस इज योर एक्सरसाइज. यू हैव टू प्रैक्टिस इट.